wish you good morning to one and all. Today's presentation is about separation of power in India, the three organs of government, presented to you by Aadya. The separation of power is a fundamental principle of democracy that aims to prevent the concentration of power in the hands of any one branch of the government. The separation of power, it is a fundamental principle of democracy that leads to the prevention of any one branch being too powerful than the other. In India, the separation of power is enshrined in the constitution, which divides the government into the following three branches: legislature, executive, and judiciary. In our country, the separation of power is enshrined, which means different in the constitution, which then divides the government into three branches: legislature, executive, and judiciary. To ensure that this balance is not disturbed, the constitution provides for checks and balances between the branches of the government, which helps to ensure that no one branch becomes too powerful. To ensure that this balance is not disturbed, the constitution provides for supervision and balance between the branches to ensure that no one branch becomes too powerful. Now let us learn about the three branches. I would like to ask, what is legislature? Can anybody answer? Yes. Law-making body of we can say that legislature is our elected representatives also, like you can say MPs and MLAs. Now another question: why do people elect MPs and MLAs? MPs and MLAs are elected so they can represent the people on their behalf. Yes, we can say that. As well as we can also say that they are also elected. To perform some functions, like to make laws and oversee the work done by the executive branch. The legislature in India consists of two houses: Lok Sabha, lower house, and the Rajya Sabha, upper house. The Lok Sabha is directly elected by the people of India, while the members of Rajya Sabha are elected by the state legislative assembly. The members of Lok Sabha, they are elected by people, as the word itself says, Lok Sabha, and Lok means people. And on the other hand, the members of Rajya Sabha, they are elected by the state legislative assembly. Executive. The executive branch is responsible for implementing the laws passed by the legislature and running the day-to-day affairs of the government. The executive branch, it is responsible for implementing the laws which were made by the legislature branch. It is also helpful for running the day-to-day affairs of the government. The executive branch of the government is headed by the President of India, who is head of the state, and Prime Minister, who is head of the government. The executive branch is headed by two people, President and Prime Minister of our country. The President is head of the state, which means the country, and Prime Minister is head of the government. The President and Prime Minister are assisted by a council of ministers, which include heads of various government departments and ministries. The President and Prime Minister, they are assisted by various council of ministers, which include heads of various government departments as well as ministries like Home Ministry, Foreign Affairs, Education Ministry, etc. The judiciary in India is independent of the other two branches of government and is responsible for interpreting and enforcing the laws. The judiciary in our country is independent of the other two branches, legislature and executive. It is also responsible for interpreting and enforcing the laws. Interpreting means to explain and enforcing means to make people obey. So we can say that judiciary is also responsible for explaining and making people obey the law. It is a system of courts, lawyers and judges. You just give me one example. Judiciary in India is independent of the other two branches of the government. Do you have any example to ask today? How will you explain the term independent?
If you say how they will be able to understand the meaning judiciary in India is independent. So we can say So who like is not independent? So in this contrast, you may explain or may have to ask from time for cancel. judiciary is independent. It means other two are not independent. So what does it mean? The how judiciary is something special. How can we Can say that anybody? judiciary is independent? This is also question in your textbook. Explain how judiciary is independent. And what does it mean? Yes? Anybody? Ask me. Would you like to say? Yes. Sir, judiciary is the branch which do the justice. Do the justice. Then how independent? What does it mean if someone is saying independent? Judiciary is independent. That means that it is not answerable to the executive and the legislature. Whereas the executive and legislature आगे से are, इसका फेस कवर करो ना. whereas the executive and legislature are answerable to each other for their action that they have done. Do an example. So, like if any law has been executed by the executors, so sir, it needs to be verified by the legislature. Whereas if someone disobeys the law, the judiciary does not need to, verify his action towards the people who have this, further punishment here. Okay, you explain what you have. इसका सुन लेते हैं. सर हम बोल सकते हैं क्योंकि सर जो लेजिस्लेचर जो बिल बनाता है या एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करता है तो सर उस लॉ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जुडिशरी के दायरे में ही रह के एग्जीक्यूट करना पड़ता है. सर जब जैसे कोई अमेंडमेंट भी होता है तो वो सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उससे जुडिशरी के प्रिंसिपल से बाहर नहीं जा सकता है. इसलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट है लेकिन हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जुडिशरी पे डिपेंडेंट है. प्रत्येक बोलो हाँ. So I had the same answer as Ash. Repeat the answer. Okay, so we can say that the judiciary is independent of the other two branches. As legislature, it oversees or supervises the work of executive, and judiciary can supervise the work done by legislature and executive both. But no other branch can supervise what work was done by the judiciary. Okay. So see one example. Huh? What about our केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन? Whether it is independent body or it is under control of some department. It is controlled under some department. This department, regional office, then headquarter, whole complete one body is the KVS, including regional office, केंद्रीय विद्यालय, headquarter. This is one body. This body is independent or under control of some department So this or under supervised by some department. So our school. From the school to the headquarters, all. We have a one. How many schools we have? Sir. In केंद्रीय विद्यालय कितने स्कूल है हमारे पास? लेकिन एनुअल डे में बोला गया था ना, मैडम ने स्पीच में बोला था. कितने बच्चे हैं सर स्टूडेंट्स? 14 लाख और समथिंग. कितना 14 लाख और कुछ है. लैक्स में है हमारे बच्चे 14 लाख. और थाउजेंड्स में है हमारे स्कूल. एक बार केंद्रीय विद्यालय संगठन टाइप करना केवीएस वेबसाइट पे जाना. चले तो जाओगे ना? Yes sir. और वहाँ पे जाके अबाउट मी ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. वहाँ से जाके केंद्रीय विद्यालय संगठन या हम करना प्रैक्टिकल भी देना. जिस बॉडी के सारा जुड़े हो ना उसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है. जैसे आपसे क्या पूछते हैं कि आपके माता पिता का नाम क्या है, अच्छे से बच्चे बता देते हैं. फिर गाँव में जाओगे तो पूछते हैं कि दादाजी का नाम बताओ. उनको दादाजी से कनेक्ट करते हैं कि कौन से लोग. आई बात समझ में? तो अगर हम अवेयर नहीं है तो हमें तो हमारे गाँव की बात याद है. कई बार वो दादाजी के पिताजी का नाम पूछते थे और जब हम नहीं बता पाते थे तो उनको अनकम्फर्टेबल लगता था और हमें भी एम्बैरेसिंग फील होता है ना. तो ये ना अवेकनिंग है कि हम पहले खुद को जाने फिर अपने फैमिली मेंबर्स में जहाँ तक हम जानते हैं उनको जाने. तो इन द सेम सेंस वी हैव अ केवी है ना. केवी का जो फंक्शनिंग है, जो हेडक्वार्टर है
या उसके ऊपर कौन है ये हमें जानना चाहिए। बट बाय द वे मैंने जो क्वेश्चन पूछा सबको समझ में आया? केंद्रीय विद्यालय संगठन सारे स्कूल, सारे बच्चे, सारे इवन कमिश्नर्स, प्रिंसिपल्स, डिप्टी कमिश्नर, ये सब किसके अंडर सुपरविजन में या कंट्रोल तरीके से काम करते हैं? हु इज कंट्रोलिंग, हु इज डायरेक्टिंग, हु इज सुपरवाइजिंग? इसी से ना तुम्हारा जुडिशरी का आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ वो एग्जांपल ये बताएगा कि वी आर नॉट इंडिपेंडेंट एज जुडिशरी वी है। हमारा स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, तो सर उसमें भी कुछ रूल्स इंपोज होते हैं जो हमारे स्कूल को फॉलो करने पड़ते हैं। डिपार्टमेंट में पूछता हूँ, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, एक वर्ड का आंसर है। क्वेश्चन है कि किसके अंडर सुपरविजन में हम काम करते हैं। मैं आंसर और फैलाता हूँ, इवन सीबीएसई, इवन एनसीईआरटी, ये सब किसी एक के अंदर काम करता है। पॉलिटिकल थिंकर्स और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ऐसे कैसे बनोगे? इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन है इसका, इतनी अच्छी इसका क्वेश्चन है, आई अप्रिशिएट। बट थोड़े से और हमें उसको और आगे लेके जाना है। कौन सा होगा? अभी ना इसने प्राइम मिनिस्टर का फोटो दिखाया एग्जीक्यूटिव के फॉर्म, उसके एग्जांपल्स में से क्या क्या बताया था? एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एज अ गवर्नमेंट क्या लिखा है? रनिंग डे टू डे अफेयर द गवर्नमेंट। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? एंड देन आगे हेड ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्री। नाउ द आंसर। अब आंसर करो कि हमारा ये पूरा मामला किसके अंदर है? सबसे ऊपर कौन है? सर काउंसिल एजुकेशन मिनिस्टर। सो we are not independent as we are under supervision and control of education minister or ministry of education। ऐसा समझ में है ना? हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें उनसे अप्रूवल लेना है, या वो जो कह रहे हैं उनके पास एक्सपर्ट बॉडी जो हमें डायरेक्शन देते हैं, सुपरविजन करते हैं, वो हमें एग्जीक्यूट करके आगे करना है। आई बात समझ में? ऐसा कोई एक डिपार्ट, अब मैं बहुत सारे एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है हमारे पास, है ना? पुलिस है, सीआरपीएफ है, उसका हेड है होम मिनिस्टर हमारे पास। इस तरीके से इंडिया में जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जहां पे भी तुम उंगली रख दो, जहां पे भी तुम सोच लो, उसका कोई ना कोई एक हेड होगा जो एक मिनिस्टर भी होगा। ये क्लियर? चाहे गांव के सड़क बनाने की बात हो, या खेती की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, इवन इंडस्ट्री की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो, सबका एक मिनिस्टर मिलता है। डू यू हैव एनी मिनिस्टर ऑफ जुडिशरी? नो ना? वो मिनिस्टर है हमारे पास। इसका मतलब कि ये इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी के ऊपर कोई नहीं। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इन दिस सेंस। आई बात समझ? इसका मतलब है कि कई बार जुडिशरी को प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाना पड़ सकता है अपने न्यायालय में, है ना? पर हम एज अ बॉडी, हम अपने जो सबसे सुप्रीम बॉस है, मिनिस्टर है, उनको उनके मर्जी के खिलाफ हम यहाँ नहीं बुला सकते हैं क्या? नहीं बुला सकते। पर जुडिशरी एक सम्मन देगा तो कोई भी हो हिंदुस्तान का, उसको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुई थी इलाहाबाद कोर्ट में, इमरजेंसी कुछ लगा था हिंदुस्तान में, उसके पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को बुलाया गया। वाई? ऐसे समझ में? तो इंडिपेंडेंस का मतलब समझ में आ गया। तभी हमें हमारा फेथ है कि जुडिशरी जब भी होगा न्याय करेगा, क्योंकि उसको किसी का डर नहीं। एक जज में, एक सिंपल कोर्ट का जज का पास भी पावर है कि वो किसी को भी सम्मन भेज के बुला सकता है। और उसके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ एक सेशन कोर्ट के जज ने सजा सुनाई। इतनी बड़ी हस्ती है राहुल गांधी, और उसके सेशन कोर्ट के जज ने सजा सुनाई। उसका सब कुछ खत्म हो गया। पार्लियामेंट्री जो उसका था ना, वो एमपी थे ना, वो उसको वहां से हटा दिया गया उसके आधार पे। 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई। 2 साल से ज्यादा की सजा होने के बाद आप एमपी नहीं रह सकते। आए समझ में कैसे इंडिपेंडेंट है? पर ऐसी क्लियर हो गया? The Supreme Court of India is the highest court in the
land. Additionally, there are also So this is done now. This is done. Now this is done as we have explained and discussed. So come to the next. So, sir, I have a question. Yes. So, Proceed. I would like to ask how many Supreme Courts are there and in which state is it located? There is one Supreme Court in India and it is located in New Delhi, the capital of India. Now अब ये दो बच्चे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे, ठीक? जो नहीं किए उनसे पूछना। क्वेश्चन थोड़ा आसान भी हो तो अच्छा है, ताकि वो आंसर करें। Now, as the presentation is coming to an end, a question arises in my mind. How does this structure, the three branches, ensure that their power is checked? I really like to answer. इसे रिपीट करो। How does this Checks and balances, है ना? Yes. Check and balance जो तीन स्टेट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बताया ना, एक लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एक उसको इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव, और एक अगर इस इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जुडिशरी न्याय करता है, सजा सुनाता है, पनिशमेंट देता है ना? तो क्या इसमें कोई चेक और बैलेंस है? कोई गलत कर रहा है तो उसको रोकने वाला है इसमें कि नहीं है? दैट इज अ चेक एंड बैलेंस। तो यहाँ पे हमारे पास वाइस वर्सा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ना पार्लियामेंट को भी डायरेक्शन देता है, तो कई बार कुछ कानून बना के पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट से कुछ बातें जो चाहता है वो कहना चाहता है। नहीं मतलब आउट ऑफ द वे अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया, आउट ऑफ द वे मान लो उसके पास बहुमत है, मेजॉरिटी है, कुछ भी कानून बना दिया, चलो भाई आज से क्लास स्कूल में पढ़ाई बंद हो जाए, ठीक? तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि भाई इस पार्लियामेंट ने ये जो लॉ बनाया है वो लॉ बच्चों के फेवर में नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। एज वी हैव अ राइट टू एजुकेशन, है ना? वी हैव अ फंडामेंटल राइट। तो अगर हमारा फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट अगर कानून बना के कंट्रोल करे, लिमिट करे, सो वी विल मूव टू द सुप्रीम। सो द चेक एंड बैलेंस समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, ठीक है, हो गया। बाकी ये स्लाइड तो शेयर करोगे ना ग्रुप में? हाँ, तो बच्चे वहाँ से देख लेंगे। सो दिस इज डन ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे लग रहा है कि बच्चे डे टू डे अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा बनाते ही जा रहे हैं, है ना? तो ये हमारे बच्चों के लिए, क्लास के लिए अच्छी बात है। मैं एक और बात कह रहा हूँ कि कुछ एक 7th से 8th क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम उसका मैसेज देके मैं मेरा अंदर से अजीब सा फीलिंग आई। मेरा फोन का विदिशा क्या नाम था उसका, थी यहाँ पे। तो उसका जो वीडियो अपलोड किया ना, तो उसने देखा होगा, उसको देखने के बाद उसको बहुत लगा होगा, वो बहुत मिस कर रही है। वो कह रही है कि हमारे स्कूल में हमारे टीचर हमारे ऐसे नहीं कराते हैं, हम क्या करें? मतलब बहुत ही समझ रहे हैं ना, उस वाले सेंस में दीपी को उसको बहुत बुरा लग रहा है। तो उसको यहाँ होना चाहिए, है ना? वो बहुत है ना, आपके पास एक अच्छा ग्रोथ मिला हुआ है, बच्चे भी अच्छे हैं, डिसिप्लिन है, मेहनत कर रहे हैं। बस एक ही कमी मुझे दिख रही है कि हर दिन कहने के बाद भी सबके पास उसकी कॉपी और किताब खुली हुई नहीं है, जो पहली शर्त है। इतनी सारी बातें बताए, अच्छी बातें बताए, बिल्कुल सही है सर। ये स्टॉप को उसमें से कुछ ना कुछ हमें नोट करना की आदत होनी चाहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, यू डन वेरी वेल। सर बंद कर।